Good morning, student. Yesterday, I explained the chapter The Talkative Barber and all the question answer. And after the video, few days, I gave the some question answer as a home assignment. That is it is mandatory for all the student to write your notebook and send the pics on my WhatsApp number. It is mandatory. It is must for all the student. And now we are discussing about the chapter flank together that is most important for UT third exam because UT third exam is at your hand. And at first I will tell the summary of the chapter. I explain the summary of the chapter. And so let's start the summary of the chapter. After that I will explain one by one line. So start the summary. Flying Together is a story that is about a flock of geese and how they managed to escape a hunter together. It revolves around a wise goose and how it managed to help them escape. Further, it will also help students realize about teamwork and effort. The story begins with the flocks of geese living together in a tree. As the wisest goose noticed vine growing on the branch of the tree, he advised the other members to get rid of it, as it will prevent hunters from spotting them. However, no one paid heed to his advice and go on about with their life. At last, the moment which was dreaded takes place where a group of hunter spot them and try to catch them. Now, as the geese land in trouble, they regret not listening to the wise geese. Thus, he come to their rescue with a plan and help them escape together. Flying Together is a story revolves around a flock of geese and how they flew together to shape themselves. A flock of wild geese live together in a tall tree, and old goose, which is very wise, start getting worried about the small creeper that start growing at the foot of the tree. He asks the other bird to get rid of it. The wise goose worries that if it grow bigger, they will get into trouble. He fears hunter will be able to climb them and thus kill them. However, the other geese don't pay much heed to the fear and carry on. As time passed, the creeper started growing stronger and thicker, and at last it now started to wind up the tree, and it become strong like a rope. Thus, one day a hunter comes and notices the vine. He climbs up the tree while taking the help of the creeper and finally reach the top. The hunter spread his net over there for trapping the geese. Now the geese realize that they have nowhere to go. They also start regretting not listening to the old wise goose. As the hunter trapped them, they tried for help and the old goose come to their rescue. He thinks clarity of a plan which will help them to get out of there. He advised the world to pretend to be dead. If they do though, if they do this, the hunter will assume that they are dead and will throw them on the ground. Thus, they carry out the plan as per the wise goes. In the morning, all the geese start pretending to be dead. On seeing this, the hunter falls for it and thinks they are all dead. As they are lying still in the net, therefore, he starts throwing each of them out one by one on the ground. When he finally throws away the last geese,
they reach the end of their plan, the old ghost asks them to fly away, and as the last one reached on the ground, they all get up, started flapping their wings, and start flying together. And thus they save their life. If we don't follow the advice the our teacher and our parents, so we should on the ditch like the geese. So we always follow all the instruction given by your teacher, your parents. So here let's we start the chapter. Okay, let's start. Now I will explain one by one line what are some of the things your parents and teacher tell you to do on time. वो क्या चीज़ें हैं जो आपके पेरेंट्स और टीचर आपको बताते हैं कि उसने टाइम पे करें, कि वही बैग सही जब आप इस घर से व्हेन यू रिटर्न फ्रॉम द होम टू द स्कूल देन योर पेरेंट्स told you that beta keep your bag right place, keep your dress right place. What you are, some student, not you, some student, that mischievous student are throwing here and there their bag and baggage. What it is bad habit. Get up इन द मॉर्निंग, जैसे कि गेट अप इन द मॉर्निंग, सुबह बेटा उठो जल्दी, डू द होमवर्क, अपना होमवर्क करो, पैक योर स्कूल बैग, अपने स्कूल बैग को तैयार करो, पैक करो, लाइक दिस, ऐसी बातें करते हैं. सम ऑफ द स्टूडेंट ओबे द ऑर्डर एंड सम ऑफ द स्टूडेंट नॉट. सो व्हाट हैपेंड व्हेन यू डिडंट डू एज दे आस्क यू टू डू. क्या होगा जब वो लोग आपसे कहते हैं कुछ करने को और आपने नहीं करा, इग्नोर करा उनकी बातें, तो देखो क्या होगा. दिस स्टोरी tells us about these happened. Deep in a forest stood a very tall tree. Deep in a forest, घने जंगल में, stood a very tall tree, एक बड़ा सा ऊंचा सा पेड़ था. Its leafy branch spread out like a strong arm. इसकी जो लीफी ब्रांच थी स्प्रेड आउट फैली हुई थी जैसे इसके हाथ स्ट्रॉन्ग आर्म, मजबूत भुजाएं की तरह तरह समान. दिस ट्री वॉज द होम ऑफ अ फ्लॉक ऑफ वाइल्ड गीस. यहाँ पे एक वाइल्ड गीस का जोड़, मतलब फ्लॉक माने झुंड रहता था. दे लेफ्ट सेफ देयर, दे फेल्ट सेफ देयर, वो वहाँ सुरक्षित महसूस करते थे. वन ऑफ द गीस वाज अ वाइस ओल्ड बर्ड. उनमें एक बहुत बूढ़ा गीस था, बहुत बुद्धिमान भी था और बूढ़ा भी था. ही नोटिस अ स्मॉल क्रीपर एट द फुट ऑफ द ट्री. उसने नोट करा, क्रीपर होता है बेल, एक छोटी सी बेल जो बड़े होकर बहुत भारी बन जाती है, स्ट्रांग हो जाती है. एक स्मॉल क्रीपर एट द फुट ऑफ द ट्री, पेड़ से उगना शुरू हुई है. ही स्पोक टू द अदर वर्ड अबाउट इट. उसने और पक्षियों से, दूसरे पक्षी थे उनसे बोला, उनको बोला इसके बारे में. डू यू सी दैट क्रीपर, ही सेड टू देम. उसने उन लोगों से कहा, क्या आप ये क्रीपर देखते हैं. लेट अस डिस्ट्रॉय इट. हमें इसे ख़त्म कर देना चाहिए. डिस्ट्रॉय मीन्स होता है ख़त्म कर देना चाहिए, उखाड़ देना चाहिए, फिनिश कर देना चाहिए. वाई मस्ट वी डिस्ट्रॉय इट, आस्क्ड द गीस इन सरप्राइज. बाकी गीस ने सरप्राइज से कहा कि हम इसे क्यों करना चाहिए ख़त्म, क्यों करना चाहिए, क्या बिगाड़ लेगी, ये हमें क्यों ख़त्म करना चाहिए. इट इज़ सो स्मॉल, ये इतनी छोटी है. व्हाट हार्म कैन इट डू, ये क्या नुकसान पहुंचा सकती है हमें. माई फ्रेंड रिप्लाइड द वाइस ओल्ड बर्ड. उस ओल्ड बर्ड ने उत्तर दिया, मेरे दोस्त, दैट लिटिल क्रीपर विल सून ग्रो. एक छोटी सी दिखने वाली क्रीपर एक दिन बहुत बड़ी हो जाएगी, बहुत जल्दी ही बड़ी हो जाएगी. एज इट क्रीप अप द ट्री इट विल बिकम थिक एंड स्ट्रॉन्ग. और जैसे जैसे ये मतलब बढ़ेगी, वैसे वैसे ये मजबूत भी होती रहेगी. व्हाट ऑफ दैट, आस्क्ड द गीस. गीस ने कहा, बाकी गीस ने, कि उसका क्या क्या होगा. व्हाट हम कहना क्रीपर डू अस, एक क्रीपर हमें क्या नुकसान पहुंचा सकती है. डोंट यू सी, रिप्लाइड द वाइस वर्ड. उस वाइस वर्ड ने आंसर दिया, डोंट यू सी, आपको नहीं दिखता है. विद द हेल्प ऑफ दैट क्रीपर, इस क्रीपर की मदद से, इट विल पॉसिबल फॉर समवन टू क्लाइम दिस ट्री, यह संभव हो जाएगा कि कोई भी व्यक्ति इस पेड़ पे चढ़ सकता है, क्योंकि दिस क्रीपर विल हेल्प लाइक अ स्टेयर. ये जो क्रीपर है ये एक सीढ़ी की तरह काम करेगी. अ हंटर कैन कम अप किल अस, और कोई भी हंटर आएगा
शिकारी और हमें मार देगा। वेल देयर इज नो हरी, दे रिप्लाइड, उन्होंने उत्तर दिया कि चलो कोई जल्दी नहीं है इस बात की, कर लेंगे। द क्रीपर इज वेरी स्मॉल, क्रीपर अभी बहुत छोटी है बेल। इट वुड बी पिटी ऑन डिस्ट्रॉय इट नाउ, अगर हम इसे खत्म करेंगे तो हमें इस पे दया आ रही है कि इसी छोटी सी बेल को क्यों खत्म करें, अभी होने दो। व्हाट हार्म इट गिव अस, ये क्या नुकसान पहुंचा सकती है हमें। डिस्ट्रॉय द क्रीपर व्हाइल इट इज स्टिल यंग, द ओल्ड बर्ड एडवाइस, उस बूढ़े व्यक्ति ने, उस बूढ़े पक्षी ने सलाह दी, इस क्रीपर को नष्ट कर दो। वाइल इट इज स्टिल यंग, अभी ये छोटी है, ये आपसे आराम से भी खत्म हो सकती है, इसे आराम से इसे उखेड़ के फेंक सकते हैं हम, इसे खत्म कर दो। नाउ इट इज टेंडर, अभी ये मुलायम है। एंड यू कैन कट इट इजली, और आप इसे आसानी से काट सकते हैं। अभी मुलायम है और इसे अभी आप आसानी से काट सकते हैं। Later it will become hard and you will not be able to cut it, और बाद में ये बहुत मजबूत हो जाएगी और आसानी से नहीं कटेगी फिर ये। वी शैल सी, हम देखेंगे। वी शैल सी, हम देखेंगे। आंसर द वर्ड, उन पक्षियों ने आपस में आंसर कहा कि हम देखेंगे। वट दे डिड नॉट डिस्ट्रॉय द क्रीपर, लेकिन उसने क्रीपर को उन लोगों ने नहीं खत्म करा। दे फॉरगेट द वाइस ओल्ड वर्ड एडवाइस, वो फॉरगेट मीन्स होता है भूल गए, उस बुद्धिमान बूढ़े पक्षी की सलाह को भूल गए वो लोग। एज द क्रीपर ग्रो, जैसे जैसे क्रीपर बड़ी हुई, इट बिगेन विंडिंग इट अप वे द ट्री, इसने पेड़ को चारों तरफ घूमना बांधना शुरू कर दिया। देखें आप, यू आर लुकिंग एट द पिक्चर, किस तरीके से गोल गोल घूम रही है क्रीपर। स्ट्रॉन्गर एंड स्ट्रॉन्गर बिकम, और ये मजबूत पे मजबूत होती गई, जैसे जैसे ये बड़ी होती गई ये स्ट्रॉन्गर होती गई, मजबूत होती गई। अनटिल इट वाज स्ट्रॉन्ग एज अ थिक रोप, और एक बार अंत में ये इतनी मजबूत हो गई जितना कि एक रस्सा होता है, रस्सी होती है मोटा रस्सा, उसके बराबर मजबूत हो गई। वन मॉर्निंग, एक सुबह, व्हेन द गीस हैड गॉन आउट इन सर्च ऑफ फूड, जब सभी पक्षी लोग गए हुए थे सर्च ऑफ फूड, भोजन की तलाश में बाहर, अ हंटर केम, एक हंटर आया, शिकारी, टू द फॉरेस्ट, जंगल में। सो दिस इज वेयर द वाइल्ड गीस लिव, यो ये वही जगह है जहाँ वो गीस लोग रहते हैं, जंगली। ही सेड टू हिमसेल्फ, उसने अपने आप से कहा, अपने आप सोचा कि ये वही जगह है जहाँ वाइल्ड गीस रहते हैं। व्हेन दे कम बैक इन द इवनिंग, जब वे आएंगे आते हैं शाम को, आई शैल कैच देम, तो मैं उनको पकड़ लूंगा। द हंटर क्लाइंब अप, शिकारी चढ़ा, द ट्री, पेड़ पे, विद द हेल्प ऑफ द क्रीपर, उस क्रीपर की मदद से चढ़ गया ऊपर। ही गॉट टू टॉप, ऊपर पहुंच गया सबसे ऊपर, एंड स्प्रेड ही नेट देयर, और वहां उसने अपना जाल फैला दिया। देन ही क्लाइम डाउन एंड वेंट अवे, और तब उसी की मदद से, क्रीपर की वजह से वो नीचे आया और वहां से चला गया जाल फैला के। इन द इवनिंग, शाम को, द गीस रिटर्न होम, वो गीस जब घर लौटे, दे डिड नॉट नोटिस द नेट, उन लोगों ने उस नेट को नोटिस नहीं करा। एज दे फ्लू इनटू द ट्री, जैसे ही वो उड़ के पेड़ पे बैठे, दे वर ट्रैप्ड, वो सब जाल में फंस गए थे। दे स्ट्रगल्ड हार्ड टू गेट आउट व्हाट कुडंट, वो उन्होंने खूब संघर्ष करा उस बाहर निकलने का, बहुत मेहनत करी बाहर निकलने की इस नेट से, लेकिन वो नहीं निकल सके। हेल्प हेल्प क्राइड द गीस, वो चिल्लाने लगे, मदद करो मदद करो, मदद मदद, वी आर कॉट इन द हंटर नेट, हम फंस गए हैं हंटर, शिकारी के जाल में। ओ व्हाट शैल वी डू, अब हम क्या करेंगे, अरे हम क्या करेंगे, हम शिकारी के जाल में फंस गए हैं, अब हम क्या करेंगे। डोंट मेक अन फस नाउ, सेड द वाइस ओल्ड गीस, उस बूढ़े पक्षी ने सलाह दी कि अब हड़बड़ी मत करो ज्यादा। लॉन्ग एगो आई टोल्ड यू टू डिस्ट्रॉय द क्रीपर, बहुत समय पहले ही मैंने तुम्हें कहा था कि इस क्रीपर को खत्म कर दो, इस क्रीपर का खत्म कर दो। वट यू डिडंट, लेकिन आपने ध्यान नहीं दिया, कुछ नहीं करा। नाउ सी, अब देखो, व्हाट हैज हैपेंड, क्या हुआ। टुमारो मॉर्निंग, कल सुबह, द हंटर विल कम, शिकारी आएगा बैक लौट के, एंड किल ऑल ऑफ अस, और ऑल किल अस ऑल, और हम सबको मार देगा।
वी वर फुलिश द वर्ड्स पे वो पक्षी रोने लगे, हम मूर्ख थे। वी आर वेरी सॉरी, हम बहुत क्षमा मांगते हैं। वी डिडंट लिसन टू यू, कि हमने तुम्हें नहीं सुना। प्लीज टेल अस व्हाट टू डू, अब कृपया हमें बताइए कि हमें क्या करना चाहेंगे, क्या करें हम। देन लिसन केयरफुली रिप्लाइड द वाइस वर्ड, उस बुद्धिमान पक्षी ने जवाब दिया, तब ध्यान से सुनो। When the hunter come you must all pretended to be dead, जब वो हंटर आए तो आप सब लोग एक मरे हुए होने का बहाना बनाना, मतलब मृत समान हो जाना, सांस रोक लेना और ऐसा लगे कि हम सब लोग मर गए हैं। जस्ट लाई स्टिल, जैसे ही झूठ, एक तरीके से शांत पड़े रहना। द हंटर विल नॉट वांट डेड वर्ड, हंटर कभी भी नहीं चाहेगा कि उसे मरे हुए पक्षी मिले। ही विल थ्रो अस टू द ग्राउंड, वो हमें फेंकेगा जमीन पे। इट विल देन बी इजी फॉर हिम टू क्लाइम डाउन, कलेक्ट द डेड वर्ड, तब वो बाद में उतरेगा और एक एक मरे हुए पक्षी को इकट्ठा करेगा एंड देम होम, वो घर ले जाएगा। व्हेन द लास्ट ऑफ अस हैज बीन थ्रो डाउन, जब हम में से लास्ट हर कोई वो फेंक दे नीचे, वी मस्ट क्विकली गेट अप एंड फ्लू अवे, तब हम एकदम, जब एक एक पक्षी नीचे आ जाए फिर हम एकदम उड़ जाएंगे वहां से, फ्लू अवे। इन द मॉर्निंग, सुबह को, द हंटर केम, शिकारी आया, टू द ट्री, पेड़ के पास, एंड क्लाइंब अप, और चढ़ा। ही लुक्ड एट द गीस इन द नेट, और उसने देखा गीस को नेट में फंसे हुए। दे आर ऑल डेड, वो सब मरे हुए थे। ही मटर्ड टू हिमसेल्फ, वो अपने आप से बोला, कि अपने आप से हल्के से कहा कि अरे ये तो सब मर गए। ही थ्रू देम आउट वन बाई वन, उसने नेट से एक एक करके सबको नीचे फेंकना शुरू कर दिया। द वर्ड्स lay still under the last one had been thrown down, और वो पक्षी जो फेंक रहा था नीचे, वो सब लास्ट तक शांत पड़े रहे जब तक एक एक पक्षी उसमें से उसने फेंक नहीं दिया नीचे। देन ऑल एट वंस, तभी सभी अचानक, दे कॉट अप, वो उठे, फ्लैप्ड देयर विंग, अपने पंखों को फड़फड़ाया, एंड फ्लू अवे, और उड़ गए। द हंटर वाज टेकन बाय सरप्राइज, हंटर को बहुत आश्चर्य हुआ। फ्रॉम द टॉप ऑफ द ट्री, पेड़ के ऊपर से, ही वॉच ऑल द गीस फ्लाई अवे, वो उन सब पक्षियों को उड़ता हुआ देखता रहा और वो कुछ नहीं कर सका। सो माय डियर स्टूडेंट, द मैसेज फ्रॉम द स्टोरी वी गेट दैट वी शैल ऑलवेज फॉलो द एडवाइस of our teacher, our parents. Okay, it is written by शिव कुमार, adapted from the story from पंचतंत्र की कहानी है वाइस ओल्ड वर्ड, वहाँ से ली गई है। Now we are discussing about the word meaning of the chapter. Okay, so first word is geese, plural of goose, large web-footed bird होते हैं ये। Okay, creeper, you know very well, in Hindi we can say बेल, पतली सी, and English, plant that need support to grow usually along a wall or tree, प्लांट जो कि नीड सपोर्ट मांगता है ग्रो बड़े होने के लिए, चाहे वो कोई दीवार हो या कोई पेड़ हो, इसके संग संग वो बेल बड़ी होती है। विंडिंग, विंडिंग मीन्स होता है गो इन सर्कुलर, गोल गोल घूमना सर्कुलर में, स्प्रिकल कोर्स। मटर्ड, मटर्ड मीन्स होता है हल्के से बोलना, हल्की आवाज में, स्पोकन इन लो टोन, जैसे यहाँ पे आया था ही मटर टू हिमसेल्फ, वो अपने आप से हल्के से बोला कि शायद वो मर गए हैं। इस तरीके से मटर्ड माने होता है स्पोकन इन अ लो टोन। एंड फ्लैप्ड मीन्स होता है मूव विंग्स अप एंड डाउन, अपने पंखों को फड़फड़ाना ऊपर नीचे। ये आई थिंक ऑल द वर्ड मीनिंग एंड ऑल द चैप्टर यू गॉट इट, एंड if you have any problem in this chapter you can tell me about it, and in this chapter you will learn all the word meaning, not write, only learn all the word meaning from this chapter. And after the revision of UT third I will start the new मतलब essay 2 syllabus, okay, for the essay 2, and there are 4 and 5 chapter will come in your final exam. So after this I practice the question answer of this chapter, and in the last one chapter has remained left
for UT third. Then I completed that chapter. After that, I will do the chapter of essay 2. Okay. So bye, student. Have a nice day.